Now I'm sharing my screen. Yes. My screen is visible to you. Yes, now it's visible. Okay, now just mm, see what I'm doing. Okay. ये मेन कहाँ डिफाइन करा है? This one. ओके। आसिफ भाई भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जोड़ लूँ क्या? Mm-hmm. आसिफ भाई। Sure. ओके। I will speak with him. ओके श्योर। Walaikum assalam. How are you? I'm good. Thank you. How about you? Just see what I'm doing Okay. and let me. Good idea. And Asif, Yes, Robert. Thank you, Robert. just help Saddam when he needs your help because you are very senior guy. Alhamdulillah. No, no. Actually, he haven't created the cache. So I told him to leave it the upper pass, upper part parameter. We are getting the parameter and cache name from the integration admin page. If he not cache manager are not created, then it's through the error. That's why I told you after validation you can do we will do Mm-hmm. or we will create the cache later. Mm-hmm. इसीलिए यूजर आईडी पे ही हम लोग ये कर रहे हैं वैलिडेशन मतलब ये कर रहे हैं वैलिडेट हम रखेंगे उस चीज पे कि यूजर आईडी से मिलना होना चाहिए. Yes, yes. Just mute. And you want to ask something? Unmute yourself and ask the question. Screen is visible, na? यस यस। Both of you. Yes. Okay, good. नहीं, एक में चैनल लोग। अच्छा, ये जो रीजन कोड हम लोग डाल रहे हैं, गेट रीजन कोड,
अजहर भाई, Yes, yes. ये जो रीजन कोड हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, इन्वोक कर रहे हैं, ये सर्विसेज पहले से इन्वोक होनी चाहिए, और उसमें हेडर क्या है, मतलब स्पेसिफाइड है? Actually, this value which I am providing here, हम्म। these values are available in the database. ओके Okay. ओके There is a field that is native code which is present in the reason code table, ओके and from that table this field, uh, this is the missing data value of this field. So whatever the value corresponding to this field is present there, it will fetch that value from the database. This is what we are doing. We already defined the reasons that why the code is not working, so we have already created an architecture for that. With the help of database we are implementing that architecture. This is, and what we, this is the system name we have provided. Let me show you that thing also. Asif, you know this? Hello. Yes. Yes, you Like know it now. yes, we are getting all the error from our database, which is we Yes, are already this is, describing. Yeah. yes, Saddam, this is, I am giving this value and the corresponding values it will take by itself. Okay. Okay, so these things is taken from database, and even I Yes, was yes, I was yes. doing hard coded because of the previous services got hard coded, so I was doing the blindly, and I was not knowing like Then which kind of. under, then see, that's why I told you go through the services, see that this is the adapter, go into the adapter, check it, that what it is doing, which table it is taking, which database. I So was you will get understand this. I was not having Yes. access of database now. That's why. No, but I ask you to just import that database also in your local SSMS. I think Asif, you have it. Yes, I have it also. Saddam as a Yes. database. Last Saddam time I also. Saddam also have yes it. No, Okay, yes then all, why saying? no, all of them are not there actually. Uh, Yeah, but yes. yeah, today I'll get it. I'll get it. Then take assistance from Asif, not complete help, but just he, because he know how to do it, he will tell you. Yeah, yeah, he is a Okay, senior guy. Saddam. Yes, No, no, Alhamdulillah, no, you have a good guy. no, no. Yes, yes, Asif. Azhar bhai, last time I imported all the data from the server to his Mm-hmm. system. Okay, then So he doesn't know. I last time I told me everything is in database. Go through with select one service and go through it. You will get Okay, everything. okay. Then he is So getting some issue. Just tell him that how you have to do this. Okay, Asif. yes, This yes, sir. will, yeah. Yes, yeah. He is understanding now. Before he was confused how to get the cache these things. No. Okay, okay. Do you, you know, guys, what I am doing right now? Yeah, as of now, as per my What? understanding, you are doing as like the data should be like either the operation ID or request ID, that should be not null, and if it is null, it will Hmm. throw the error. So these things you are doing right now, right? Hmm. Yes. Validation. Mm-hmm. Validation. Validation on you have to validate on like all fields Yes, which status. are mandatory, which are mandatory. Okay. No, non-mandatory are not required. Otherwise, there Yes. in at the end there is a update type. So what kind of update we are doing here? Like, update type means what? What kind of updation? Either like Where? if you will go to document, okay, the input and output fields. See, right now I told you, just ask me if you are not understand what I have done just right now. Don't ask me right now the things which are not here, okay? Because it once I will done, then I will tell you when I have completed this thing, Okay, okay? okay. I think after this process you will go there directly. Then you ask if I would be there, then you can ask. Okay, okay, sure, sure.
Comprehensive. Wait, really? नहीं आ रहा खुल गया पूरा जिससे चालू ना मेन लॉजिक में क्या कर रहे हैं हम लोग अजहर भाई We have to update the comment of the task. This is our okay objective. from database the comment was there the error comment right so we are updating that comment No, 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 not from the database. It will come from the CA employee, okay from the CA portal. So here, Yes, data will come JSON format, right? yes, yes, right. You are Uh, right. You are intelligent. MashaAllah. Jazakallah. like same thing I was doing to accept the task, but I am Mm-hmm. accepting like the searching like in the database there is a task ID. So I'm getting the task ID from the database, which will insert at the time of maybe instance will run, BPM process will run. Mm-hmm. Then it No, will no, yes, Asif, just explain it again. What? like I was doing like accept the task. So what I was doing like I'm getting that like in the database see a instance service instance in the service instance when process will run task Mm-hmm. ID will store there, right? Okay.
So as I see in the table, Mm-hmm. so Okay, okay, task I ID will understood. task ID will save there. Then Mm. so I use the select adapter to get the task ID or all data. Then Mm-hmm. after select adapter, I'm getting the task ID to the update task, which is inbuilt service. Mm-hmm. So there I'm updating the task, and after updating, I'm inserting updating the status. So I was doing Mm-hmm. like this. Yeah, you are doing correct. Then what issue is coming? Yeah, it is working, but there is a update task, like I don't have task active task, so it is not working. But if I Okay, okay. We enable. will, we will solve that also. Okay, we will because Okay. we have to do that also. After because first those services have to run and then this one because this is the update one and Yes. that is the so we will Yes. do that also. Mm. Just first we have to do this. Now this is Eh, complete JSON string. Now mhm. documents. What I need to do? I need to this one get service instances. But here I'm confused. Like JSON string to document. What Like you are what confusion? taking JSON string to document. Like Yes, it's come from the EUI, right? yes. It come in the form of So the here, JSON, na? Yeah. okay, then it okay in the main logic then. Mm, Okay, yes. understood. Okay. Understood. मेन लॉजिक में कॉम्प्लिकेशन है क्या? यही तो 29 की है देखना टेस्टिंग के साथ हाँ 3 दिन है अभी तो और ये जो लगाया लॉजिक मेन में क्या कर रहा है? ये कमिट कर दिया मैंने ये डॉक्यूमेंट मुझे तो लेके जाना चाहिए हाँ हाँ डेटा नहीं है इसमें तो प्राइवेट कॉपी करके उठा के यहाँ से चिपका दिए इधर अभी टास्क एंड डिले यहाँ से ओके वहाँ से अपडेट कर देगा ना नहीं डेटाबेस में खोल के नहीं देगा भाई क्योंकि नहीं आप बोले ऐसे छेड़छाड़ नहीं मत करो उसको रहने दो आप ही उस दिन बोले
तुम्हारा डेटाबेस है, तुम कुछ भी कर नहीं, सकते आप हो। उस दिन बोले ना डेटाबेस से छिड़खानी मत करना। उसका AWS का बोला था। तो मैं बोला भाई क्यों बकचोदी करने नहीं, वाला था। डेटाबेस में अपने डेटाबेस में कुछ सिविल भी AWS के डेटाबेस में कुछ कुछ भी मत करना। कुछ भी होगा तो मिस्टेक फालतू, इसलिए मैं खोला ही नहीं उसको जाना नहीं, उसको। तुम्हारे लोकल वाले को तुम कुछ भी करो, उसे कुछ भी कर दो, मैं फिर से डाल दूंगा वहां से लाके फिर। तो अपना डेटाबेस करो, पर सर्वर के डेटाबेस में कुछ मत करो। चाहे ये सर्वर है चाहे वो सर्वर, दोनों सर्वर के डेटाबेस में कुछ नहीं करना। अजहर भाई का दिमाग खाते थोड़ा देर और। करने दो, अभी करने हैं तो फिर से पूछो ये क्या करना। अपडेट ऑपरेशन दो जगह खोले हुए हैं, अपडेट रिक्वेस्ट। एक पे काम कर रहे, एक को देख रहे प्रोसेस। मतलब अपडेट रिक्वेस्ट से ये रेफरेंस ले रहा है Yes, ना। guys, यस प्लीज ब्रदर। getting it, everything. आप दो सर्विसेज काम करके हैं, लाइक अपडेट रिक्वेस्ट एंड अपडेट ऑपरेशंस, सो यू आर वर्किंग ऑन अपडेट रिक्वेस्ट और अपडेट ऑपरेशंस, because you are doing, Update operations. but you are doing changes in update request. Who's saying this is update operation, brother? Update request is unlocked. Yeah. Sorry, logged. Uh, I haven't logged it. It is unlocked. okay. Actually, update operations it's open into what we'll call. Hmm? So in main logic, first you are doing as like JSON to string document. Okay, you are taking as a string and you're converting to document. Then you're updating it as a adapter using adapter. Then you are doing branching on the process instance ID task ID. Okay, the task ID should be not be empty, and now the error will be given. Okay, so now from here we'll go to the exit after default. So I was doing in my local, I was not like doing anything in the main server. I know it, brother. So everything I need to create it by new. Can I use directly this reason code services wherever you have created in the CA common services gets reason code? So I'm using the same services. I'm also No, using. you are using in that directly server, but I am asking about I will be using in local. So what? Everything is same, na? Same, no? Only the server is changing. Rest, all the things are same. Okay. So how is Adnan bhai? Nan bhai is good. He is cool, man. He is not calling me. He's not calling you. Yeah, Messaging. I texted him, Messaging. but he is not like, he is busy with work. Yeah. He's not interested in you. He lost interest in you. गरीब को कोई सहारा नहीं. है तो आसिफ. आसिफ भाई हमारे सहारा आसिफ बनेंगे. भाई हमारे सहारा बनेंगे। हाँ? अजहर भाई जिसको हाँ भाई. 500 आम का पेड़ है, वो गरीब होता है। सही बात. कि क्या है इसके पास? 500 आम का पेड़। 500. अरे हाँ, भाई मजाक अरे कर भाई रहा है. मजाक जब कर से रहे मजाक बनाया ना, जब से मजाक. अरे जैन को इसने बताया होगा. जैन से अच्छी दोस्त थी इसकी. सही हाँ कह हाँ। रहा है. सही कह रहा है. ऐसे अल्लाह ताला सबको गरीब बनाए। सही बात है. आसिफ भाई के घर में आसिफ सरकारी भाई के नौकरी है, बताइए. सरकारी नौकरी किसके पास है? अरे आसिफ भाई से पूछिए, अभी बताएंगे. सरकारी नौकरी, एमएलए, एमपी सब साथ में. अच्छा हाँ, वो तो है ही. यहाँ से के पास है. सही कोई बात. केस होगा बताइएगा, 2 मिनट में पार करवा देंगे. अरे अल्लाह ना करे भाई केसों के चक्कर में पड़े.
नहीं मतलब किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपका भी नाम ऊंचा हो जाएगा। हाँ, हमारे अजहर भाई हैं, उन्होंने बस एक रेफरेंस लगाया, सब काम खत्म। अच्छा, चलो सही है। क्या करना है इसमें? टास्क आईडी दे दी, यूजर दे दिया, गेट टास्क कमेंट्स हो गया, यहाँ से कमेंट आईडी देना है अच्छा, मुझे। ये गेट टास्क कमेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग? हम्म, हाँ, कमेंट्स ले रहे क्या क्या कर रहा है? कहीं से, डेटाबेस वगैरह से? हाँ और क्या। कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको, वहां से ले रहे हैं टास्क, वहां से गेट कर रहे हैं हाँ कैसे? बताओ। क्या हो गया? आ गई बात। फरीद भाई लोग साथ साथ में है क्या आप लोग के? अभी तो नहीं है। आवाज नहीं आ रही जनाब आपकी, बिल्कुल भी। ये मेरा फोन खराब हो गया, इसका मतलब। हाँ हेलो। नहीं आ रही है आवाज जनाब, लग रहा है आपका हेडफोन कुछ चमक गया। आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी हल्की सी आई। अब हाँ, अब आई। आ गई, सही है। के अंदर रखना पड़ता है इसके माइक को। ओके। इमरान ने ला के दिया। इमरान है का? अच्छा, वही हेडफोन यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ वही है भाई। इमरान है ऑफिस में ही बैठा हुआ। अच्छा नवाज भाई, कहाँ है इमरान? ऑफिस में ही है हम लोग। अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले केबिन में आ गए, क्योंकि इमरान भी कॉल में था और ये भी खिजर भाई भी कॉल में थे, सब कॉल में था। चलो सही कर रहा। तो मैं कि इको ही हो रहा था, तो इसलिए हम लोग आ गए इधर। सही कर रहा। शाहनवाज भाई कहाँ बैठते हैं आप लोग के बगल में? हाँ। अरे पूरा एसी ठंडा करके रखते होंगे। हम्म। एसी 16 पे चलाते हैं शाहनवाज भाई, ठंड लगती है फिर। नहीं यहाँ तो नहीं चलाते ज्यादा। अच्छा। नेटिव रीजन कोड कहाँ का रह गया यार? तो कहाँ था वो? अभी लगाया ना नेटिव रीजन कोड, किधर लगाया मैंने? नेटिव रीजन कोड वहाँ। ये ये रह गया। और ये स्टेटस भी देखो, मैंने नहीं करा बातों बातों में। बता नहीं रहा तुम लोग। नहीं, हमें लगा आप, हम तो पहली बार देख रहे हैं सर्विसेज डेवलप करते हुए, हमें लगा आप सही कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, बता दो। तो इसीलिए तो मैंने लगाया मॉनिटरिंग पे। मैं उस टाइम देखा हूँ, हालांकि नोटिस किया हूँ, फिर मैं सोचा कि नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से आप सही कर रहे होंगे, मैं बीच में बोल दूंगा, बोलेंगे तू मुझसे ज्यादा जानता है। नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बोल दो तुम। अच्छा। मैं अभी तुमसे पूछूंगा, इसमें बहुत सारा लॉजिक अभी रह गया, ये तो मैंने थोड़ा बहुत ही लॉजिक बनाया है इसमें। अच्छा। तो मैं इसीलिए तो लिया मैंने कॉल पे। अब आसिफ को भी पकड़ूंगा मैं। अच्छा, आसिफ है उसको वैसे पकड़ लो। आसिफ आसिफ का इससे काम आसान हो जाएगा, आसिफ को भी, क्योंकि ये हर उस सर्विस में यूज हो गया होगा ये अपडेट ऑपरेशन। कुछ ऐसा है इसका। अच्छा, तेल। हम्म, अच्छा ये इसने खुद ही ले इंटरनल लिया डेटा आपने यूजर। डिफाइन करा है अलग से, क्योंकि ये इनपुट में नहीं है। कौन सा? इंटरनल डेटा जो है आपका, हम्म। ये आपने अलग से हाँ डिफाइन ये करा मैंने, है। हाँ एक तरीके का ये यही तो तुम लोगों से कहा है, जाओ देखो इंटरनल डेटा हमने क्यों करा ऐसा। मुझे इसका क्वेश्चन का जवाब चाहिए कल। ठीक है। एक्चुअली पता है आपको, हम ना इंटरनल डेटा नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट हम कर रहे थे। तो आपको इंटरनल डेटा में जनरली चाहिए था यहाँ पे हेडर वगैरह, ठीक है, हाँ। टास्क आईडी वगैरह, तो वो तो डॉक्यूमेंट से मैं डायरेक्ट फेच कर रहा था इसको, इंटरनल डेटा को। मतलब नेम नहीं था वो इंटरनल डेटा, मैंने तुम डायरेक्टली। गलत कर रहे थे ना अच्छा, फिर। गलत कर रहे थे क्या? तुम गलत कर रहे हो और क्या। ओके। तुम फिर गलत कर रहे थे वो। मुझे लगा डायरेक्ट वो, अगर हमें यहाँ से हेडर वगैरह ही चाहिए, तो ऑलरेडी हमारे इनपुट में है, तो क्यों ले हम इंटरनल डेटा अलग से? नहीं भाई, तब तुम गलत कर रहे हो। ये आपने आसिफ ये देख लो, तुम ऐसे करना है ऑपरेशंस का वो। हाँ वही देख रहा हूँ मैं। ये
अब मुझे एक बार ये तुमसे पूछूंगा, क्योंकि वो अभी मैं उस वो थ्रू नहीं करा है, एक्सेप्ट में, रिजेक्ट में, कंप्लीट में, कि वहां पे ऑपरेशंस भी क्या वहां भी जेसन फॉर्मेट में आ रहा है? हाँ, उसमें जेसन में ही दिखाया, जैसे मैं स्वेगर से देख रहा हूँ, मुझे रिक्वेस्ट आईडी से करना है हाँ, तो फिर तुम्हें यही एक्सेप्ट करना में। पड़ेगा, एक ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको लेना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट को जो जेसन में आ रहा है इसमें लेना पड़ेगा, फिर इसके फील्ड यूज करना पड़ेंगे तुम्हें जहां जहां जरूरत है, समझ गए? ऐसे करना है बस ये, वही। और कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ। वही मैं देख रहा था, आपने यहाँ लिया अपडेट टास्क कमेंट, तो मैं अपडेट टास्क ही ले रहा था ओनली। ठीक है, अब ये हो गया बस। अब इसमें कुछ बचा क्या? टास्क अपडेट हो गई, कमेंट। जेसन में आपने लिया, उसके बाद अडेप्टर से यहाँ पे अडेप्टर रैपर गेट सर्विस इंस्टेंस गेट लिख लिया उस टास्क यहाँ अब से इसका जो लॉजिक आप। है, रह गया अभी तो, मैंने बस मेन मेन मोटा मोटा लगा दिया इसमें। अभी कंडीशन से छोड़ हम्म, दिए मैंने इसमें, है अच्छा। नहीं? इसमें भी कंडीशंस है। इसमें भी क्योंकि अभी कंडीशन है। वैलिडेशन, मेन लॉजिक और ये लॉग लॉग सीक्वेंस वाला चलो कर लेते हैं पहले। ये तो सब वही है, रिपीटेड है। आसिफ तुम्हें पता ही होगा। हाँ, ये लॉग्स वाला तो सेम सेम डॉक्यूमेंट है। हमें नहीं पता है, लेकिन मैं बस देख रहा हूँ कि वहाँ पे हाँ, लॉग्स में रिस्पांस मिल रही में है, गेट रिस्पांस मिल रही मिल है, रही है, इवेंट मिल गेट रही मिल है। रही है, इवेंट मिल रही है। तो क्यों नहीं पता? मैं तुमसे इतने दिन से कह रहा हूँ कि गो थ्रू करो, जो नहीं है पूछो। अच्छा, ये आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहे क्या उठा के वहाँ से? लग रहा फिर से हेडफोन नीचे हो गया इनका। आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी आई। उस टाइम नहीं आ रही थी। माइक है अब आ रही है आवाज? जी, अभी आई। बीच में चली गई थी अभी 10 सेकंड पे। अब आ रही है? अब हल्की आ रही है। हेलो? जी हाँ, हेलो। हेलो। हेलो, अभी आई थी, मैं इससे पहले बोला था, अभी हाँ, नहीं आ रही इसका नहीं, मतलब? बहुत हल्की आई थी उससे पहले जब बोले थे तो। अब सही आ रही है? अभी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। चलो सही है। इस टाइम सही आ रही है ना? जी जी। चलो अच्छी बात है। ये मैप रेस्पॉन्स क्या है? ये मैप रेस्पॉन्स आसिफ? ये आप इंटरनल डेटा से आप अपने रिस्पांस में मैप कीजिएगा अपडेट ऑपरेशन। आसिफ को तो ये बहुत क्योंकि पता है, उसने पूरी पूरे मुझे स्ट्रक्चर बना के दी है। हाँ, उसी टाइम में मुझे थोड़ा समझ में आया था, अच्छा ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो बाद में गो थ्रू किया तो पूरा समझ में आ गया था, जो वो कहाँ पे क्या आसिफ, कर रहा आसिफ माशा है। हेलो। आसिफ, हाँ आसिफ। हम्म। आसिफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक्चुअली लास्ट टाइम जो आपने बताया था ना, क्योंकि थोड़ा सा क्या टाइम लगता है, पर एक बार समझ जाता हूँ ना तो फिर दिक्कत नहीं होता। सही लॉजिक। बात। तो हाँ, गेट रेस्पॉन्स टाइम में को लेना पड़ेगा, गेट शायद। ये ऑलरेडी इंटरनल में है। हाँ, ये लेना पड़ता है बस। यहाँ पे एक वो देना पड़ेगा ना, रिप्लाई टाइम स्टैम्प हाँ इंटरनल के अंदर है। हाँ हाँ यहीं से ले लेते हैं यहाँ पे, फिर कॉपी हाँ कर। भाई। देखो इसका हमने वो तो दिया ही नहीं। पैटर्न वगैरह डिफाइन करना पैटर्न पड़ेगा वगैरह ना? डिफाइन करना पड़ेगा ना? ये है तो डेट फॉर्मेट का, ले तो लिया, डेट फॉर्मेट ही देते हैं ना ये। हाँ, मैं वही देते मैं हैं। रन मैं कर रहा था, मैं रन कर रहा दिया था, ऑलरेडी डेट था। फॉर्मेट दिया ऑलरेडी था। जब और रन कर रहे थे जब पास कर रन रहे कर रहे थे, थे तो डेट पास कर फॉर्मेट रहे भी थे, डेट ऑलरेडी फॉर्मेट भी डेटा, बट ऑलरेडी डेटा, एरर आ रहा बट था मेरा, मिसिंग एरर आ रहा था मेरा। डॉक्यूमेंट्स डेट हाँ, तो फॉर्मेट। जब नहीं दोगे तो क्या? तो तुमने वहां पे वो पहले दिया नहीं होगा ना, इनिशियलाइज कहीं से वैल्यूज को, या तो इनिशियलाइज करो या उसको वैल्यू कहीं से प्रोवाइड कराओ। हाँ, तो हार्ड कोड किए थे तो फिर हुआ था। हार्ड कोड मतलब क्या पैटर्न करना है हार्ड वो कोड। लॉग इवेंट? अच्छा। ये जिससे आपने पैटर्न को डेट टाइम से ये किया ना। आसिफ, ये वाला क्या कर रहा है, ये वाली सर्विस बताओ।
ये सर्विस में ऑपरेशन इवेंट, यहाँ पे आप आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको रिप्लाई आसिफ, एक तरह से म्यूट है। हेलो वेयर इज आसिफ, हेलो बता। हेलो यस, हेलो यस, यहाँ यस। यहाँ हम रिप्लाई कर रहे हैं ना। क्या कर रहा है ये? कहाँ है ये? क्या कर रही है ये? सेंड ऑपरेशन इवेंट क्या कर रही है ये सर्विस? अ, इसको नहीं रिप्लाई कर बताओ इसको मेरे को। रिप्लाई कर रहे हैं ना। किसको रिप्लाई कर रहा है क्यों बताओ? रिप्लाई तो कर रहा है, किसको कर रहा है? रिक्वेस्ट जो आ रहा है हाँ। एरर क्या, ये मुझे समझ में नहीं आया अभी मैं। हैं, यही तो कर रही चीज है। तुम और हम सब साथ में ही आए इस पे। बस ये कि हमने हाँ काम हाँ ज्यादा किया है नहीं? हाँ। तो जितना एक अच्छे से एक करोगे। तरह से मतलब ये मतलब एक तरह से हम पहले से एरर डिफाइन कर रखे हैं। हाँ। नहीं, ये एक्चुअल में मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सर्विस कहाँ डेटा भेज रही है, पता है ये? चलो तुम मुझे लॉजिक में बस इतना बताओ, मोटी मोटी चीज अच्छा, बताओ। ये लॉग लॉग पे भेज रही है आई थिंक। लॉग लॉग कहाँ पर है ये? सिस्टम का है क्या है ये? सिस्टम का ही है। नहीं, हमने एक टेबल बनाई है ऑपरेशन, याद करो, तुम्हें याद होगा, तुमने डेटाबेस सेटअप किए है ना? डेटाबेस ऑपरेशन। बताऊँ कौन सा? हाँ देखो ये, मैं दिखाऊं मैं, ये जो है इसके अंदर है शायद, ये डिटेल्स, ऑडिट। ये देखो ये ऑपरेशंस है ये। ओके, मतलब ऑडिट बेसिकली ये ऑडिट के लिए रखा है हम लोगों ने। और ये सारी चीजें तुम्हें सद्दाम को बताना अगर इसको समझ में नहीं आएंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ ऑपरेशन बता दीजिए मुझे थोड़ा ऑपरेशन में। ऑपरेशन नहीं, सब कुछ बताना तुमसे जो नहीं आए। अच्छा ज्यादा मैं परेशान उसको। करे तो हाँ सर। मुझे बताना। ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है वो डेटा सारा। कि ये लॉग्स ये एक हमारे तरीके का, टेबल में स्टोर हो रहा हाँ, है ना। ये एक तरीके का हमने अपने, क्या कहेंगे, बेनिफिट के लॉग्स लिए एक अलग से इंफॉर्मेशन। एक टेबल बनाया कि उसमें हमारी सारी चीजें हमें पता चलती हैं लॉग्स में जाके कि क्या हो रहा है, क्या सर्विस फेंक रही है, ठीक है? इसलिए बनाया इसका, ये इसीलिए कह रहा हूँ तुम लोगों से, ये पूरा आर्किटेक्चर समझो, मेन चीज आर्किटेक्चर को समझना है। अच्छा ये मतलब ये बस हमारा जो डिटेल्स है, कोई भी सर्वर सक्सेस हो या एरर हो, सब पूरा डिटेल्स इसमें रखेगा हम। हाँ, आएगा ना। ये सारे फील्ड्स लिए हैं ना हमने इसीलिए, कि इससे हमें ये पता चल हम्म जाएगा कि पर्टिकुलर यहाँ पे सब कुछ है ना, सर्विस का नाम है, सेशन आईडी है, ये हम्म सर्विस क्या कर रही है, सही रन हो रही है नहीं हो रही है, रिक्वेस्ट डेटा, ये सब। ये और सब जाऊँ, ये मतलब सब मुझे भी अभी मैं तुम्हें एक तरीके से बोल्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता दी मैंने, अब इसके अंदर और रिसर्च करोगे और चीज़ें पता चलेंगी तुम्हें। ये हम्म। अच्छा, बेसिकली ये प्रोजेक्ट का काम क्या है मुझे पता ही नहीं है, सिविल अफेयर्स का। आपको पता है इसका? आवाज जा रही है मेरी? मुझे एहसान बता रहा था कि ये यूजर का डेटा को स्टोर करता है एनआईसी पे। क्या हुआ? कह रहे जो हम लोग अच्छा। प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वाले से। अरे, नेट नेट चला गया था, हाँ। अच्छा, ये कह रहे ये प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या है? आसिफ बताएगा, आसिफ बताओ। बताओ आसिफ भाई। आप यहाँ सीनियर बैठे हुए हैं, मेरे से पूछते हैं आप। नहीं बताइए अगर कुछ नहीं, आपको मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी कितनी अगर अंडरस्टैंडिंग है, कि बताओ आसिफ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, नाम को अपडेट कर रहे हैं। और इसमें जैसे पहले बीपीएम के हिसाब से, जैसे बीपीएम में मैंने करा था, तो उसमें लास्ट नेम और ये सब को हम डिलीट कर रहे हैं। हैं? एक तरह से अरे नाम मेन मेन सिविल। मेन, हाँ, मैं देखो ये चीज है, ये तुम लोग इंटरव्यू में सबसे पहले तुमसे ये पूछा जाता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था, उसका तुम जब तुमसे पूछेंगे कि आर्किटेक्चर बताओ, आर्किटेक्चर में ये आता है क्वेश्चन का आंसर। अब तुम बताओ, मैं देखूं तुम क्या हम्म। जवाब दोगे, सही दोगे या गलत दोगे, बताओ। जी पूछिए। बताओ ये प्रोजेक्ट क्या है?
ये जनरल टर्म में प्रोजेक्ट बताना। सिविल अफेयर का बिना नाम लिए ओके तुम इस प्रोजेक्ट का बताना है मुझे, बताओ कैसे बताओगे। तो हम इस प्रोजेक्ट में हम हाँ, अपने लाइक लाइक क्या बोलते हैं घबराओ मत, जो समझ सिटीजन में आ रहा है वो बताओ। ओके हाँ सिटीजन का डेटा जो है पब्लिक का डेटा हम्म। उसे हम अपडेट कर रहे हैं अच्छा। हाँ, सही कर रहा है, हाँ सही बता रहा है। और और जो भी एक्स्ट्रा नाम जो है मेरे अंडरस्टैंडिंग से एक्स्ट्रा नाम है उसे हम डिलीट कर रहे हैं एक्स्ट्रा नाम डिलीट कर रहे हैं, चलो हाँ ये हो गया कि प्रोजेक्ट क्या है। अब मुझे पहले ये बताओ कि इसमें क्या पूछूंगा, मतलब अगर एक मोटा मोटा ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में पता करें, पूछें तुमसे कि क्या था, कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही थी, कहाँ क्या हो रहा था, तो क्या बताओगे? हम्म क्या अ, बताओगे? हम बोलेंगे हमारे पास एक पोर्टल था जहाँ से हम जो भी यूजर है वो रजिस्टर्ड करते हैं अपना डिटेल देके रजिस्टर करके और जो भी उसे रिक्वेस्ट सपोज नाम अपडेट करवाना है तो वो रिक्वेस्ट डालेगा देन वो प्रोसेस होके जाएगा पोर्टल पे जो हमारा या पोर्टल जो भी है मेरा सपोज आधार कार्ड का पोर्टल है वहाँ जाएगा हम्म। वहाँ का जो ऑफिसर है या एम्प्लॉय है वो चेक करेगा वेरीफाई करेगा इज इट अच्छा। वैलिड और नॉट उसके बाद सही में वैलिड है और उसका जो भी प्रूफ मुझे दिया है वो सही है करेक्ट है तो उसे हम फिर आगे प्रोसेस के लिए अपडेट के लिए भेज देंगे कि वो प्रोसेस होके उसे डिलीवर हो जाए अच्छा, ये है। क्या है? देखो ये ना, एक्चुअल में ये क्या है इसके अंदर, तुम्हें पता है इसमें इंटीग्रेशन किस किस चीजों का हो रहा है? पता नहीं, मुझे लग रहा है डेटाबेस वगैरह का होगा और जो सर्विसेज बना रहे हैं उसका इंटीग्रेशन होगा। नहीं। इसमें जैसे हम बीपीएम प्रोसेस मॉडल ले रहे हैं और अदर जैसे यूआई को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं देखो इसमें सबसे पहला क्या है, हम तीन चीजों में, हम एक तो हम डेवलप कर रहे हैं सीए पोर्टल, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, एपशर से, और एक दूसरी चीज है यहाँ की एनआईसी, दो चीजों से, समझ रहे हो? सबसे क्या पहले इसमें क्या होता है कि जो सिटीजन होता है वो इस पे नहीं आएगा, जो चीज जो जो पोर्टल हम बना रहे हैं, अच्छा। वो वो आएगा यहाँ पे, यहाँ की एक वेबसाइट है एपशर, ठीक है, वो वहां से रजिस्टर सिटीजन होगा, अपना सारा प्रोसीजर करके एक रिक्वेस्ट भेजेगा, जो रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी वो एपशर से आएगी, एपशर से, और एपशर को जो सिटीजन का डेटा है वो देगा एनआईसी, समझ रहे हो? तो जो डेटाबेस है जहाँ पे सिटीजन का डेटा सारा स्टोर्ड है वो है एनआईसी पे, और जब वो एपशर में जाके फॉर्म फिल करेगा तो जो उसकी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होगी एपशर पहले लेगा एनआईसी से, और फिर उसके बाद उसको पूरा क्या कहते हैं एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में करके वो हमें भेजेगा इन द विद इन द रिक्वेस्ट, समझ रहे हो? रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स? तो वो रिक्वेस्ट ही तो आएगा जब सिटीजन कुछ भेजेगा, तो उसके बाद ही तो तुम रिस्पांस भेजोगे, सिटीजन को रिस्पांस कैसे, सिटीजन रिस्पांस क्या क्या भेजेगा, तुमने थोड़ी उसे कुछ भेजा है। ओके। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुम जाते हो किसी प्लेटफॉर्म पे, तुम अगर कोई जीमेल पे जाके अपना जीमेल जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो तुम अपनी डिटेल्स खुद डालते हो। एग्जैक्टली। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो डिटेल्स सिटीजन की रहेंगी वो एनआईसी एक दूसरा यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के डेटाबेस में उसकी डिटेल्स हैं, तो एपशर अपने इंटरनली अपनी सर्विसेज का जो भी यूज करके एनआईसी से डेटा लेगा, उस फॉर्म को जो सिटीजन फिल भेजने वाला है उसमें डेटा फिल करेगा, फिर हमारे पास आएगी वो डिटेल्स, फिर हमारा जो सीए जो हमने बनाया है प्रोजेक्ट वो उस पे काम करना शुरू करेगा। तो तो एनआई जब वो आता है तब बीपीएम रिक्वेस्ट जो है हमारी इन्वोक होगी, समझ रहे हैं? तो एनआईसी डेटा भेज रहा है एपश्योर बोल के कुछ एप्लीकेशन आप बताएं उसको, है ना? चलो मैं तुम लोग को डायग्राम दिखाऊंगा इसका, उसके बाद समझाऊंगा ये चीज, मगर तुम लोग इसका मेन ध्यान इस पे रखो, आर्किटेक्चर पे, समझ रहे हैं? नहीं। तो आर्किटेक्चर मतलब डिफाइन करने बोले तो मतलब
क्या क्या एक बार आर्किटेक्चर का ओवरव्यू मतलब ये दो। होता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, तुम कहाँ पे उसकी एरर हैंडलिंग कर रहे हो, कहाँ पे तुम डेटाबेस उसका स्टोर कर रहे हो, कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हो, कौन सा डेटा कहीं बाहर से आ रहा है, तुम्हारी सर्विसेज क्या कर रही हैं। और इनको कभी भी प्रोजेक्ट का नाम लेके नहीं बताना होता है, जनरल टर्म में हमें इसका बताना होता है। हम ये नहीं कहेंगे इंटरव्यूअर से कि हमने सीए पे काम किया है, हम उसे कहेंगे हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है पब्लिक डोमेन के, उसमें ऐसे ऐसे चीजें होती थी, ऐसे करके डिफाइन करोगे चीजों को जनरलाइज फॉर्म में। कभी भी प्रोजेक्ट का नाम मत ओके। बताना, अच्छा, स्पेसिफिक नहीं होना राइट। है, जैसे कि फेस प्रोजेक्ट था बोल करके ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिक हो गए तो कई बार तो कंपनीज भी मना कर देती हैं, और अगर नहीं भी करती फिर वो ज्यादा डिटेल में जाएगा, तो तुम जनरल फॉर्म में बताओगे तो वो फिर तुमसे जनरल क्वेश्चन पूछेगा फिर, अच्छा। क्योंकि उसे भी नहीं पता ना तुमने क्या काम किया, तुम तो उसको जनरल फॉर्म में डिस्क्राइब करो प्रोजेक्ट। ओके ओके। लॉग आ गई यहाँ पे, क्या करना है, रीजन कोड फिर लगाना है यहाँ पे। क्या है एरर, मिसिंग नहीं, जनरल एरर सी है, यही लाइन ये डिसाइड कैसे है कर रहे हैं, उसके लिए। जनरल एरर है मिसिंग डेटा है? कैच में है ना, ओके। तो कैच में है तो एरर दोगे, यही तो चीजें पढ़ना पड़ेंगी। अभी मैं भी देखो देख ही रहा हूँ, कहीं को गलती ना हो जाए सर्विसेज में जो एक बनी रखी, इसलिए तो इसे यहाँ रख रखा मैंने। अच्छा, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कल देंगे आप? टाइम रहेगा तो अभी दे दूंगा, उसमें क्या है, मैं बता दूंगा, उसमें वो डायग्राम बना हुआ है, तुम्हें जरा सा बताना है बस। भी दे दीजिएगा, नहीं तो कल टेक्स्ट करेंगे अलग से इसके लिए। ठीक है। और बहुत सारी सर्विसेज पहले से बनी हुई है तब ना। अच्छा, एक बात बताइए हम्म, भाई, अभी तो ये सर्विस बनी हुई थी, तो इसमें फिर आप लोग क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं, नई सर्विस नहीं बना रहे हैं हम नहीं। ये सर्विस कहाँ बनी हुई है, ये चेंज हुआ है ना, तो ये चेंज हुआ है, पहले वाली सर्विस को मॉडिफाई किया गया है, तो इसलिए दोबारा से सर्विस बनाई जा रही है। अच्छा, और क्या और क्या? पुरानी सर्विस को हम उसको छेड़ नहीं रहे हैं, कहीं उसकी कहीं जरूरत पड़ जाए कुछ देखने की, तो इसलिए तो ये हो रहा है। पुराने से समझे, नए में क्या डिफरेंस है सर्विस में? पुराने से कुछ अच्छा नहीं। आसिफ ये बताओ पाइपलाइन को ये क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे मैप, लास्ट एरर में से बाहर निकाल के। पाइपलाइन। आसिफ कहाँ गया आसिफ। हाँ, आसिफ भाई लाइन में हाँ है। सुबह लाइन में है। हेलो। हेलो। यस आसिफ। क्या कर रहे हैं पाइप गेट लास्ट ईयर एरर से पाइपलाइन पाइपलाइन में रख रहे हैं डेटा ना। हाँ क्यों कर रहे हैं? वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो हैं। डेटा हाँ भाई हीरो। जो डेटा एरर आ रही है जो उसको एरर आ रही है स्टोर उसको कर आप रहे हैं। स्टोर कर रहे हैं। यही कर क्या रहे हैं ना आप? सद्दाम क्या यही कर बता रहे हैं रहा ना है। आप? नहीं नहीं, क्या बोल रहे तुम, बोलो फिर से। नहीं, हम कह रहे हैं कि जो पाइपलाइन में जो यहाँ पे कैच में एरर आ रही है, तो इसको हैंडल करके डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप इसको स्टोर कर रहे हैं, राइट? टेम्पररी हम्म। में यही कर रहे हैं ना आप? हम्म। नहीं मैं ये नहीं हाँ कर तो यही रहा हूँ मैं, तो यही मैं बोल रहा हूँ। मगर मैं आसिफ से पूछ रहा था ये पाइपलाइन वाला क्यों कर रहे हैं हम, ये बताओ। पाइपलाइन में पाइपलाइन नहीं करा था भाई। टेम्पररी के लिए स्टोर कर रहे थे क्या? हम्म। पाइपलाइन में टेम्पररी स्टोर कर रहे थे, राइट? यस यस यस। क्यों कर रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, क्यों कर रहे हैं बताओ मुझे। हाँ मुझे लगता है टेम्पररी डेटा रखने के लिए नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा डेटा लग स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है यूजर को क्या एरर है, हाँ। राइट? अच्छा। आप तो बता नहीं रहे, बस अच्छा। पूछा पूछा कर रहे हैं।
ये मुझे भी नहीं पता। मैं भी सोच चलिए चलिए देखूंगा। चलिए, मेरा बात मान लीजिए, यही कर रहे हैं हम लोग। वही मुझे पता है। तो मैं बता नहीं रहा हूँ, तुम लोगों से कल पूछूंगा मैं इसका आंसर। ढूंढ के रखना। ठीक है। ठीक है, इसको डिबग करेंगे, फिर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा मुझे। आपको पता ही है इसका आंसर कहीं मिलेगा नहीं। ये वैसी है प्लूराजुलाइजेशन की तरह। पता है इसका स्काई प्रोफाइलर का ढूंढ रहा हूँ। यूट्यूब पे सर्च मारा, नाम ही नहीं हाँ, जानता यूट्यूब स्काई दांत प्रोफाइलर भी दांत है का कुछ। ट्रीटमेंट आता है। वो काम करने लगा ना। नहीं वो कॉन्फ़िग नहीं हुआ ना। स्टैटिक पेज खुला, काम नहीं कर ब्लैंक रहा। आगे नहीं काम किया उसने, लेकिन अच्छा। लॉ लॉगिन पेज आ रहा है जिसमें जब तक कॉन्फ़िग नहीं होगा तब तक वो डिटेल्स नहीं आएगा इंटीग्रेशन सर्वर का। तो अच्छा। हमने इंस्टॉल कर लिया है, बस हमें कॉन्फ़िग करना हो। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो लॉगिन होने के बाद जितना भी डिटेल्स होगा वो दिखा देगा, जो जो भी इन इंस्टेंस उससे मतलब उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो। हाँ हाँ। अच्छा। आई थिंक क्या कि मैंने देखा है एक दो स्क्रीनशॉट देखा था तो उसमें देखा था, तो समझ में नहीं आया कहाँ जाके कॉन्फ़िगरेशन करूँ और कैसे करूँ। अच्छा। अच्छा। आप लोगों ने किया है क्या? नहीं, हमने नहीं करा, तभी तो तुम्हें फरीद भाई ने बोला था, हम लोग इसमें बिजी हैं ना, इस काम में। फरीद भाई किए तो होंगे। वही, ना, फरीद भाई ने भी नहीं किया। क्योंकि देखिए अरे, रिसर्च करने के बाद तो ये पूरा मैं हम लोग को कुछ हिंट्स मिलेगा तभी कुछ कर सकते हैं ना। इंस्टॉल कर दिया मतलब सब कुछ आ रहा है। अब पता है फराज भाई से पूछा उन्हें भी नहीं सदाम ने। पता होगा। मुझे हाँ भी नहीं पता वो था। बोले ये है क्या है। मैं पूछा उनसे कि आपने काम किया इस पे, तो कह रहे कि नहीं मैंने कभी काम नहीं किया इस पे, बट अपेरेंटली तुम करो तो मुझे ही पता चलेगा। बात ये नहीं है, वो देखो। पूछ रहे हाँ, बताओ। हम हमें करना क्यों है ये। तो मतलब तुम बताए बताए जो उन्हें। ये मॉनिटरिंग के, हाँ मॉनिटरिंग के लिए। तो फिर मैं मेरे से नहीं हुआ था, सद्दाम से ही बात हुआ था, मैं मीटिंग में नहीं था, ये था मीटिंग ओनली। फराज भाई तो वहाँ है ना, अमेरिका, यूएस में। नहीं नहीं, 15 दिन हो गया, नहीं आए हैं हैदराबाद। आ गए। 15 दिन हो गया, 15 डेज। अच्छा, तो सही है, फिर बढ़िया है। हमने उनसे कहा कि आप संडे को आइए, मुलाकात मुलाकात करेंगे, तो बोले ठीक है आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। फिर मैसेज किए थे तो बोले तबीयत खराब है। भैया बिजी आदमी उनकी, और वो वैसे भी मैरिड है। जो इंसान का टाइम बचता है वो फिर अपनी फैमिली को देता है। अच्छा, हाँ फैमिली से ज्यादा भाभी कहाँ है? ये है। भाभी जी वैसे वो गए क्यों थे वहाँ, पता है? हाँ? जॉब के लिए गए थे वो वहाँ पे, कोई प्रोजेक्ट था उनका यूएस में। हो गया खत्म, आ खत्म गए। हो गया, खत्म करके आ गए। शानदार यार, ये होती है देखो। जब तुम्हें काम करना आ जाए तो जहाँ दिल चाहे जाओ, कुछ दिन रहो और आ जाओ। हम्म, पैसे दो और आ जाओ। गए थे प्रोजेक्ट खत्म करके आ गए, कह रहे थे, हम पूछे थे तो कह रहे थे कि प्रोजेक्ट था खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे है। हम्म। इंटरनल डेटा में यहाँ पे जो है, क्या था, डेट फॉर्मेट किसको जाएगी? अच्छा, इसका भी तो जाएगा यार। डेट फॉर्मेट पैटर्न तो ये जाना इसमें ही है। ना, इंटरनल डेटा में हेडर भी जाएगा। हेडर का है रिस्पॉन्स। ये अलग से आपने इंटरनल डेटा क्यों बनाया? आसिफ क्या कर रहा है? आसिफ समझ में आ रहा है कुछ? आसिफ भाई बताइए, हाँ देख रहा हूँ। इंटरनल डेटा क्यों बनाया वो अलग से? एक तरीके का वो कलेक्शन कर लिया इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, बस, और किसी कोई उसका वो बट नहीं है बट सेम चीज तो इम्पोर्टेंस हमारा इसके अलावा। उसमें भी है, रिक्वेस्ट में। हाँ। जब रिक्वेस्ट में है ही है तो इंटरनल डेटा क्यों चाहिए अलग से? हाँ।
ये सद्दाम, ये बताइए यहाँ पे मैं रिप्लाई टाइम स्टैम्प से क्यों मैप कर रहा हूँ? किसको कर रहे हैं रिप्लाई टाइम स्टैम्प से मैम? इसको गेट करंट डेट को, गेट करंट डेट और गेट करंट डेट, क्यों? इसको ना, क्योंकि ये इसकी वैल्यू को रिप्लाई टाइम स्टैम्प से। क्योंकि ये डेट फॉर्मेट है, और डेट फॉर्मेट ये करंट टाइम डेट टाइम लेगा ये। और करंट डेट टाइम में तो मैं इसको, टाइम सेकंड और क्या बोलते हैं इसको, सेकंड अरे और भाई मिनट। सुनो सुनो, पहले क्वेश्चन सुना करो, जो क्वेश्चन हुआ करे वही उसी का जवाब दिया करो। ओके। मैं भी यही करता हूँ जो तुम करते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम्म है नहीं? समझ रहे हो? हम्म अभी तो मैं अपने आपस में बात कर रहे हैं, इंटरव्यू में चलो ये चीजें बताया करो, एक्स्ट्रा में नहीं हो कि टाइम टाइम पास हो। यहाँ पे तुमसे पूछा मैंने डेट फॉर्मेट में, मेरे पास दो फील्ड है, रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प, रिप्लाई टाइम स्टैम्प। हम्म। रिप्लाई को क्यों किया, रिक्वेस्ट को क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग, तुम जवाब नहीं दोगे तो आसिफ तुम बताना। ओके हम बताते हैं हम्म। पहले। रिक्वेस्ट तुम टाइम बताओ। स्टेप इसलिए नहीं किए हम लोग के, जो डेट फॉर्मेट है हम लोग ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें जो डेट फॉर्मेट मिलेगा वो सेकंड में रिप्लाई मिलेगा, मिनट सेकंड आवर पूरा डिटेल्स। तुम रिक्वेस्ट में भी तो दे सकते हो ना, वो तो खाली तुम करंट टाइम दे रहा है, वो रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प में भी तो दे सकते हो। उसमें क्यों दे रहे हो, रिप्लाई में क्यों दे रहे हो तुम, ये बताओ मुझे। अच्छा, स्पेसिफिक होगा कि रिप्लाई में क्यों दे रहा है, ये चीज़ तो मुझे भी पता नहीं। हम्म। है? नहीं पता है एग्जैक्टली क्या है वो। नहीं पता, आसिफ तुम बताओ। रिक्वेस्ट जिस सपोज फर्स्ट रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट करने का टाइम आएगा, और जब हम रिप्लाई उसको वापस डेटा देंगे रिस्पॉन्स, तो वो रिस्पॉन्स जिस टाइम दिया जाएगा उस टाइम करंट उसका डेट और टाइम देगा। वो तो तुमने बता दिया कि तुमने कैसे क्या क्या करना है, अब मुझे ये बताओ अभी यहाँ पे मैंने रिप्लाई से क्यों किया? क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्स में जा रहा है ना ये डेटा, हाँ ये बात, रिप्लाई होगा ना क्या। हाँ। ये बात सही आंसर है, करेक्ट। आसिफ देखते रहना कोई मैपिंग नहीं छूटे मेरी। तुम लोग को मैं बात तो कर रहा हूँ, मेरा ध्यान तो तुम लोगों के साथ भी है, इसलिए तुम लोग देखो भी कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ देख। देखो इंटरनल डेटा में डेट हो गई, हेडर हो गया, रेस्पॉन्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे बताओ ये स्टेटस जो है इंटरनल वाला क्यों ना लेके बाहर वाला इंटरनल क्यों लिया मैंने, ये बताओ रेस्पॉन्स में। बताओ। ये स्टेटस आप यहाँ सेंड ऑपरेशन से ले रहे हैं क्या? हम्म। ये जो स्टेटस है ये सेंड ऑपरेशन से आया है क्या, जो बाहर है? नहीं ये। नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि स्टेटस मैंने इंटरनल वाला क्यों नहीं लिया, यहाँ पे बाहर जो इंटरनल के स्टेटस है वो क्यों लिया, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं समझ गया, मुझे लगा जो, तो ये स्टेटस कहाँ से आया है चलो ये। वो तो तुम बताओ, तुमने इतनी सर्विसेज करी है, यहाँ बहुत सर्विसेज में सेम हाँ चीज हाँ हमने कर, करी है। ये कॉमन। हाँ हाँ यहाँ पे बताओ। हम क्यों अच्छा लिए। अच्छा। अच्छा बताइए कहाँ कहाँ से क्यों ले रहे हो। वो देखो ऐसा है, जब हमारा ये आया कैच में तो हमने इस स्टेटस हम्म। को बाहर रखा है इंटरनल डेटा के, देख रहे हो? हाँ हाँ समझ गया समझ गया। और अब इससे समझे। पहले हम क्या कर रहे थे, हम जो भी स्टेटस था उसको जो था इंटरनल डेटा के अंदर रख रहे थे। तो वही मैं पूछ रहा था, जो ये यहाँ रीजन गेट रीजन से आया है तो हम ये वाला स्टेटस यूज करेंगे अब कैच में। नहीं, ये सिर्फ ये रीजन है कि कैच वाले को हम इंटरनल में नहीं रखेंगे, उसे सेपरेट इंटरनल में हम अपना जो भी सक्सेस वाला है वो रखेंगे। जब कोई एरर आएगा उस ओके स्टेटस सक्स। को बाहर रख रहा है, हाँ, और इसीलिए उसका ओके। कैच वाले के जब हम लॉग में जाके उसको कर रहे हैं इंटरनल डेटा में स्टेटस में रेस्पॉन्स में, तो वो बाहर वाला ले रहा है जिसमें एरर होगा, क्योंकि हमने तुम लोगों ओके। को ये चीज देखो यहाँ हाँ पे मैंने क्या करा है, एरर के अंदर इस स्टेटस के अंदर मैंने क्या दिया है, नेटिव रीजन कोड। समझ रीजन रहे हो? कोड। हाँ हम्म। समझे, तो ये वाला एरर फिर मुझे वहां पे शो होगा, समझ रहे हो? इसका रीजन क्या है, आर्किटेक्चर ये चीज होती है, सारे स्टेटस सेम रहेंगे सक्सेस वाले हम्म। इंटरनल डेटा के अंदर, मगर कैच वाला स्टेटस हमारा कैसा है,
फेलियर है, तो इसलिए हमने उसको हम्म बाहर रखा। अगर इसको मैं इंटरनल में कर दूंगा तो फिर वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, जो पुराना पहले से इसमें एक एग्जिस्ट कर रहा है, समझ रहे हो? ये पूरा एक आर्किटेक्चर हम्म है कि इंटरनल डेटा हमने क्यों बनाया, इंटरनल डेटा के अंदर हमने क्यों राइट चीजें रखी, क्यों स्टेटस को यहाँ कैच में बाहर रखा। ये है सारा आर्किटेक्चर। ये तुम बताओगे उसे कि हम राइट एरर हैंडलिंग ऐसे कर रहे थे, सक्सेस रेट ऐसे दे रहे थे, तो तो इंटरनल डेटा इंटरव्यूअर को। इंटरनल डेटा इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग के जो भी एरर आ रही है वो हम कैच में जाकर के डिस्प्ले कर सकते हैं। हम्म। सही बात। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया तुम्हें, 10% मगर। 10% या 1%? 10 क्या दे रहा हूँ, खैर कोई नहीं। चलो इतना हो गया, ये कैच में पूरा हो जाएगा, मीटिंग होने वाली है, उसके बाद मैं तुम लोग से कनेक्ट करूंगा अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी इसका लॉजिक रह गया वो बिल्ड करूंगा, ठीक है? और तुम लोगों के समय कुछ दोबारा से देखना हो तो इस सर्विस में जाके देख लेना क्या कर रहे हैं, ठीक 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 है? ठीक ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज, आपकी एक अस्सलाम बार उधर से वालेकुम। आपकी एक हाफिज बार उधर से मीटिंग हम लोग से कनेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक ठीक ठीक, मैं कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज, वालेकुम ठीक है अस्सलाम। अल्लाह हाफिज थैंक यू ओके, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। वो रिकॉर्डिंग कहाँ गया भाई? ब्रो रिकॉर्डिंग कहाँ गया? तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारे पास है मुझे कैसे पता वो वाला मैं भी यूज करूँगा हमें लगा आप यूज कर चुके हैं। ओबीएस वो नहीं मैं ओबीएस यूज करता हूँ ये रिकॉर्ड हो गया कहाँ? इसमें जाओ देखो इधर ही है? रिकॉर्ड हो रहा था नहीं, उस टाइम तो बोले वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये है एप्लीकेशन। इसका जाओ वीडियो कहाँ है ये है क्या हाँ सब I'm sharing my screen, yes। पूरा सही है तो फिर तो एप्लीकेशन ये हो रहा तो सही है एक मिनट, ये कितना देर तक हुई है तो देखिए। पूरा हो गया कहाँ गया? चालू है। तो तो जब वो आता NIC है तब बीपीएम रिक्वेस्ट जो है हमारी इन्वोक होगी, समझ रहे हैं? तो NIC डेटा भेज रहा है ऐप श्योर बोल के कुछ एप्लीकेशन, अब बताएं इसको। इसको हम छेड़ने के बाद जितना भी डिटेल्स होगा किसको कर रहा है रिप्लाई? दे रहे हो, रिप्लाई में क्यों दे रहे हो तुम, ये बताओ मुझे। स्पेसिफिक होगा कि रिप्लाई में क्यों? मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इस यूज करेंगे आप क्यों राइट चीजें रखी हैं, क्यों, तो इस सर्विस में जाके देख लेना। ठीक ठीक ठीक, मैं कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज, वालेकुम ठीक है अस्सलाम। अल्लाह हाफिज थैंक यू ओके, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। वही तो देखिए, वो रिकॉर्डिंग कहाँ गया भाई? आवाज आ रहा है सही ब्रो अरे भाई अभी भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग कहाँ गया? तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारे पास है मुझे देखिए हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो इसको बंद करो फिर वो वाला मैं भी यूज करूँगा रुको रुको, अभी कहाँ तक चल रहा है देखो। हमें लगा आप यूज कर चुके हैं। ओबीएस वो नहीं है मैं यार अब खत्म होने वाला रिकॉर्ड हो रहा था नहीं, उस टाइम तो बोले वो रिकॉर्ड हो रहा है। खत्म हो गया ये है एप्लीकेशन। इसका जाओ वीडियो कहाँ है आप ये खोले हैं, ये है क्या हाँ रिकॉर्ड चालू है मेरे भाई। हो रहा है ऐसा कैसे हो सकता है बंद कैसे करेंगे यहाँ अच्छा है हो रहा है यहाँ यहाँ आते हुए